Hello class, this is the chapter Bringing Up Curry. This is based on class 7 supplementary reader. Now we have to do the question answers of this chapter. This chapter you have to learn yourself. You have to read yourself properly, try to understand the theme of the lesson. So easy. This is a story about a child and an elephant. How they become friends, what are the activities they do. It's all about that. So I am moving to the question answers directly. See the question number 1. Answer the questions. Question number 1. Enclosure in which Curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps as shown here. Why it was built that way? करी जिस तरीके के घर में रहता था वो इस तरीके से क्यों बनाया गया था? आप देख सकते हैं, I have taken the picture also for you. The house of the Curry was made with the help of thick tree stumps and thatched roof. एक छप्पर की शेप में इसकी छत के साथ लकड़ी के खंभों से बनाया गया हुआ घर. तो why it was like that? ऐसा घर क्यों बनाया गया था करी को रहने के लिए? This is the question. See, answer you have to learn. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps, so it could not fall in when Curry bumped against the poles. ये इस तरीके से इसलिए बनाया गया था कि ये कभी करी के ऊपर ना गिर सके, क्योंकि करी पोल्स के अगेंस्ट अपनी बम्प करता था. ये थैच्ड रूफ इसलिए था कि करी को गिरने पर भी चोट ना लगे. उनका ये मतलब है. So you have to learn the answer keeping in mind the house of the Curry, which rested on thick tree stumps, so it couldn't fall in when Curry bumped against the poles. Next question. Did Curry enjoy his morning bath in the river? क्या करी को मॉर्निंग बाथ लेने में मजा आता था? क्या वो मॉर्निंग बाथ लेना नदी में एंजॉय करता था? तो आंसर इज करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. He lie in the water for a long time with pleasure as he rubbed by his friend on his back. उसका दोस्त उसकी पीठ को रब करता था और इसलिए करी बहुत देर तक नदी के पानी में लेट जाता था लंबे समय तक. तो that way Curry enjoy his morning bath. Next one. Finding good twigs for Curry took a long time. Why? It takes half an hour to sharpen the hatchet to get twigs and saplings. For Curry, he has to climb trees to get the most delicate and tender twigs. ये इसलिए था कि करी के लिए ट्विक्स इकट्ठा करने के लिए, जो कि कोपल हुआ करती थी और वही करी को पसंद आती थी, टाइम लगता था 1 से 1.5 घंटे का टाइम. तो इतना लंबा समय पेड़ पर चढ़ के करी के मुताबिक जो करी के पसंद के कोपलिंग्स हुआ करते थे, नई पत्तियां हुआ करती थी और टेंडर ट्विक्स थी, उनको ढूंढने में इतना लंबा समय लगता था. Why did Curry push his friend into the stream? करी ने अपने फ्रेंड को नदी की धारा में क्यों धकेला? Curry pushed his friend into the stream because he wanted to show him a boy lying flat on the bottom of the river. करी ने अपने फ्रेंड को नदी की धारा में इसलिए धकेला क्योंकि वहां पर एक बच्चा, एक लड़का
पड़ा हुआ था नदी की तली में, जो कि वो करी उसको दिखाना चाहता था, उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, करी वॉज लाइक ए बेबी। करी एक बच्चे की तरह था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। इसमें मुख्य पॉइंट्स क्या थे, क्यों इन दोनों की तुलना की गई कि करी का बिहेवियर एक बच्चे की तरह था। Yes, he was like a baby as he had to be trained to be good, and if you didn't tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. छोटे बच्चे की तरह शरारत करना करी की आदत थी। He was like a baby, वो एक बेबी की तरह ही था, इसीलिए उसको ट्रेनिंग दी जाती थी कि उसे क्या सही तरीके से, उसको किस तरीके से सही से बिहेव करना होगा, अन्यथा वो एक शरारती बच्चे की तरह शरारतें करता था। He was up to more mischief than ever. So that's why here we have done the comparison between a baby and Kari. So Kari helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? Question number 6. Kari helped himself to all the bananas. Kari अपने आप ही केले ले लेता था घर में से, विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, और कोई भी इसकी जानकारी नहीं रख पाता था, किसी को भी पता नहीं चलता था। हाउ डिड ही डू इट, वो ऐसा कैसे करता था। करी स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, करी अपनी सूंड को लंबा कर लेता था, स्ट्रेच कर लेता था, फैला लेता था, एंड टेकन ऑल द बनानास, और सारे बनानास ले लेता था फ्रॉम द प्लेट से, विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, और घर का कोई भी सदस्य इस बारे में जान नहीं पाता था। सो दिस वे यू हैव टू लर्न योर क्वेश्चन आंसर्स, try to make the meaning of the question what they are asking, according that you have to answer it. You have to answer. Next one, Kari learned the commands to sit and walk. What were the instructions for each command? करी को जो आदेश दिए जाते थे, टू सिट बैठने के लिए, एंड वॉक और चलने के लिए, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड, इसके लिए उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, उसको क्या करने के लिए बोला जाता था, क्या आदेश दिया जाता था। ये दो वर्ड्स थे जो कि करी को चलने के लिए और बैठने के लिए ट्रेनिंग देते समय सिखाए गए थे, इंस्ट्रक्शंस सिखाए गए थे कि किस तरीके से उसे आदेशित करना है, किस तरीके से उसे कमांड देना है। ये दो शब्द थे, टू कमांड्स वर धर फॉर सिट एंड माली फॉर वॉक। ये दो शब्द की स्पेलिंग, ये दो वर्ड्स जो हैं, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग धर माली, एंड you have to write in inverted commas just because we have taken them as such. So, two commands were dhar for sit and mali for the walk. What is the master call and why it is most important to the elephant? This is question number 8. You have to make the meaning. What is the master call? Master call क्या थी, क्या है, and why it is most important, और वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण है to the elephant, हाथी के लिए। It was a hissing and howling sound and was to make in his ear. ये एक hissing sound थी, howling sound थी, जो उसके कान में बोली जाती थी। He generally takes 5 years to learn it properly. और कोई भी हाथी, सॉरी, करी के बारे में बात कर रहे हैं। करी जनरली इसको 5 साल में सीख पाया था, कोई भी हाथी इसको 5 साल में सीख पाता है। It was important because if you lost in the jungle, ये मुख्य इसलिए है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप जंगल में खो जाते हैं, he can guide you straight to your house. इस साउंड के कारण,
इस मास्टर कॉल की वजह से हाथी आपको सीधे आपके घर तक पहुंचा सकता है। तो इट वॉज ए हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड. This was to create in his ear, or he generally takes 5 years to learn it properly. इसको करेक्ट तरीके से सीखने में हाथी 5 साल लगाता है, और ये बहुत ही मुख्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगल में खो जाने पर हाथी सीधे आपको आपके घर तक पहुंचा सकता है, इसीलिए इसको मास्टर कॉल कहते हैं। क्लास, मैं ब्रजेश मिश्रा आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चैप्टर नंबर 2 का आज कंप्लीट किया है। जल्दी ही मैं अगले वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स भी बताने वाली हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस in this class. Thank you.